لیگی نائب صدر مریم نواز نے عمران خان کو چیلنج دے دیا ہے، کہا یہ قوم کو للکارنے کا سبق دیتے ہیں اور مسٹر ایکس اور وائی کا نام لیتے ہوئے ان کی ٹانگیں کاپتی ہیں۔ قوم کو بتاؤ رات کو کس کے پاؤں پڑ جاتے ہو؟ آپ کی ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں، آپ کہتے ہیں مسٹر ایکس مسٹر وائی، آپ کے اندر خود ان کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے، تو قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ وہ ان کو للکارے، ان کو ڈرائے؟ کل جو کالز کروا رہا تھا وہ آج کہہ رہے میرے ممبرز کو کالز آ رہی ہیں۔ ایکس وائی زیڈ کیا ہوتا ہے؟ ABC پڑھنی شروع کر دیتے ہے تو ثبوت لے آؤ نا۔ 2014 کے بعد جو دھرنا تھا، لوگوں کو کہا کہ انگلی اٹھنے لگی ہے، اور جنرل رحیل شریف نے بلایا تو ہنستے ہنستے نکل گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو للکاریں اور رات کے اندھیرے میں آپ اگلوں کے پاؤں پڑ جائیں۔ جو ملاقات کی ہے رات کے اندھیروں میں اگر کی ہے تو بتاؤ نا قوم کو، اپنی جماعت کو بتاؤ۔ وہ جس کے لاڈلے ہیں نا، وہ عمران خان کو لاڈلا نہیں سمجھتے، وہ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں۔ آج انہی لوگوں کو بلا کے ان سے مل رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں کہ میرے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ بحال کراؤ، تو کدھر گئی وہ سازش؟ تو انقلاب تو رانا ثناء اللہ کے ڈر سے نکلا ہی نہیں، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ آ کے ساری بات رک گئی۔ پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ نواز شریف صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے، ان کے کیس میں بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ مہنگائی کی وجہ شہباز شریف صاحب نہیں، اس کا جو مجرم ہے اس کا نام ہے عمران خان۔ لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات، PTI قیادت تل ملا کے رہ گئی۔ لیگل کمیٹی کے اجلاس میں قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کر لیا، اسی کے اوپر بات ہوگی۔ سما کے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹکا خان ثانی، اب کیا کرے گی PTI؟ جی بالکل، تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اور جو لیگل کمیٹی ہے اس کا باقاعدہ اجلاس ہوا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے شہباز شریف کی لندن میں نواز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقات کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے خاص طور پہ ڈاکٹر شہباز گل کا کیس اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا، اور اس حوالے سے اس کو نواز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقات جو کی ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے فواد چودھری کا اس حوالے سے بھی بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عدالت جو ہے اس معاملے کو فوری سنے گی، اور امید کے مطابق ان کو اس پہ انصاف کی بھی توقع ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عدالت عظمیٰ جو ہے وہ خاص طور پہ اس سے انصاف کے حصول کی توقع ہے۔ آج جو خاص طور پہ گزشتہ روز جو لندن میں ملاقات ہوئی، اگرچہ اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن تحریک انصاف انہوں نے ضرور فیصلہ کر لیا۔ بہت شکریہ ٹکا خان ثانی۔ PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو آرمی چیف کی تقرری میں مداخلت کا حق نہیں دے سکتے۔ انہوں نے حکومت سے شکوہ کیا کہ درام شجاع چور کو ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ عمران خان ختم ہو چکا ہے، اس کی سیاست نمٹ چکی ہے، ہم اس سے مغروب ہیں، نہ اس کو ہم یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تقرری میں کسی قسم کی مداخلت کر سکے گا۔ آئین کے مطابق یہ جس کی ذمہ داری ہے وہی ادا کرے گا، میرٹ کی بنیاد پر ادا کرے گا۔ عدالت کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ فیصلے کرتے جائیں گے، اور آپ کی چیخ و پکار ان پر اثر انداز نہیں ہو سکے گی۔ امپورٹڈ چور ہے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور ابھی تک اس کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو رہی، میں خود اپنی حکومت سے شاکی ہوں کہ وہ اس طرح ڈھیل کیوں دے رہے ہیں ایسے مجرم کو۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے لیے معجون تیار ہے، اس بار ایسی دھونی دیں گے کہ دوبارہ کبھی اسلام آباد کا رخ نہیں کریں گے۔ عمران نیازی میں جرأت ہے تو ایکس وائی کی بجائے سیدھی بات کریں۔ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار ہو جاؤ، ہم نے تماشا دیکھ لیا کافی۔ کہتا ہے میں کال دوں گا، حکیم ثناء اللہ پھر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جی بالکل، ان کے لیے جو ہے وہ معجون تیار ہے، جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دیا جائے گا، تو اسے ایسی دھونی دیں گے کہ وہ وہاں سے ایسا بھاگے گا کہ پھر جو ہے نا اسلام آباد کی طرف منہ نکلے۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے، یا ان کو پتہ ہوگا، تو اگر وہ اتنی جرأت کے مالک ہیں اور وہ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ایکس وائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیدھی سیدھی بات کریں۔
या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। वफाकी पुलिस ने पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी पर बात होगी। समा के नुमाइंदे आदिल तनौली हमारे साथ है। आदिल तनौली, क्या तैयारियां की जा रही हैं इस ज़िम्न में? इंसाफ की जानब से मुमकिना लॉन्ग मार्च जो है उसको रोकने के लिए, निमटने के लिए वफाकी पुलिस की जानब से बाकायदा तौर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस, सिंध और दीगर जो इदारे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के, जिस तरह के FC, इनसे मजमूई तौर पर 30,000 एहलकार जो है वो वफाकी पुलिस की जानब से मांगे गए हैं। मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात और दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर जो है वो कंटेनर भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी ज़राए की जानब से बताया गया है कि शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर के साथ फंदकें भी छोड़ दी जाएंगी ताकि मुजाहिरीन जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आसानी से दाखिल ना हो सकें। ये तमाम तर तैयारियां जो है पुलिस की जानब से शुरू कर दी गई हैं मजमूई तौर पर, जिसमें FC, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स के 30,000 का ये शामिल है। बहुत शुक्रिया आदिल तनौली। वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाकर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने CCPO को चार्ज छोड़ने से रोक दिया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। CCPO लाहौर को वफाकी हुकूमत ना हटा सकती है, ना तबादले की मजाज है। वफाकी हुकूमत के हर गैर कानूनी इक़दाम को मानने से इनकार करते हैं। यही मामला CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के चार्ज न छोड़ने का मामला, इस पर वफाकी हुकूमत ने तादीबी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, अब क्या किया जाएगा वफाक की तरफ से इस मामले पर? जी बिल्कुल, जहां एक जानिब जो है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये फैसला है कि CCPO डोगर जो गुलाम महमूद डोगर जो है CCPO लाहौर वो चार्ज नहीं छोड़ेंगे, तो उस हवाले से वफाकी हुकूमत जो है वो भी मैदान में आ गई है और फिर तादीबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। और जो ज़राए हैं वफाकी हुकूमत के, उनका ये कहना है कि गुलाम महमूद डोगर जो है वो वफाक से राब्ता नहीं करेंगे तो इसका वो नुकसान उठा सकते हैं और वफाक के पास इख्तियार है कि वो CCPO लाहौर की खिदमात वापस ले सकता है। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि CCPO लाहौर को आइन और कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना लाजिम है और अगर वफाक उनकी खिदमात वापस लेता है तो उनको ज़रूरी है कि वो वफाक के साथ जो है राब्ता करें। जी, आप इस अहम मामले के बारे में बता रहे हैं जनाब। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के चार्ज ना छोड़ने का मामला, देखिए बात आगे कहां तक जा रही है। वफाकी हुकूमत का तादीबी कार्रवाई करने का फैसला। गुलाम महमूद डोगर वफाक से राबिता नहीं करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, ज़राए वफाकी हुकूमत ऐसा बताते हैं। अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे कौन था? FIA ने हतमी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और वजारत दाखिला को पेश कर दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के खिलाफ एक्शन की इजाज़त मांग ली। मुबैना ऑडियो कॉल के मामले पर शौकत तरीन भी FIA के रडार पर आ गए। उन्हें और तैमूर झगड़ा को कल तलब कर लिया। रियासत मुखालिफ इक़दामात ने PTI रहनुमाओं को मुश्किल में फंसा दिया। FIA ने अदलिया मुखालिफ मुहिम की हतमी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल वजारत दाखिला को पेश कर दी, जिसमें PTI के सीनियर रहनुमा पर सोशल मीडिया पोस्टर लगाने का इल्जाम है। रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के खिलाफ एक्शन की इजाजत तलब की गई है। उधर FIA ने IMF प्रोग्राम को सबोताज करने की कोशिश पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तैमूर सलीम झगड़ा को तलब कर लिया। चंद हफ्ते कबल शौकत तरीन की एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना को IMF मुआहिदा सबोताज करने से मुताल्लिक मशवरे देते सुनाई दे रहे थे। पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने के लिए वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अमरीका पहुँच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर आज़म 23 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से अहम खिताब करेंगे। तुर्की, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया के सरबराहान मुमलिकत और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर जो बाइडन के इशाइये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका का इंतहाई अहम दौरा। तबाहकुन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे।
वजीर आजम ने न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के इस्तकबालिये में शिरकत की, जिसके बाद जनरल असेंबली में अवामी बहस का आगाज हुआ। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमीर मईशतों पर माहौलियाती तब्दीलियों से फौरी निपटने के लिए इक़दाम उठाने पर जोर दिया। It's right time to move beyond endless discussions. Vulnerable countries need meaningful action. Loss and damage are happening now, hurting people and economies now, and must be addressed now, starting at COP27. This is a fundamental question of climate justice, international solidarity and trust. वजीर आजम शहबाज शरीफ न्यूजीलैंड की वजीर आजम जिसेंडा आर्डन और फ्रांसीसी सदर एमेन्युअल मैक्रों से भी मिले। वो 23 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली इजलास से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीकी सदर जो बाइडन के इस्तकबालिये में शिरकत के अलावा चीनी सदर और दीगर सरबराहान मुमलिकत समेत माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मिलेंगे। उनका अमरीकी जरीदे से इंटरव्यू भी शेड्यूल है। सैलाब के बाइस गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 10 अफराद की जान चली गई। मुल्क भर में अमवात 1569 तक जा पहुंची। 12,860 अफराद जख्मी हुए। और बागों के शहर में आलूदगी के डेरे। लाहौर आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर आ गया। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ेगा, ऐसा कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने एतराफ़ किया कि मरियम नवाज का लंदन में फ्लैटों की खरीदने में कोई किरदार नहीं था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब खुद को बंद गली में ले जा रहा है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के वकला पर सवालात की बौछार कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया तो जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इनका अब आपको कोई फायदा नहीं मिलना। इस अपील से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ताल्लुक नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकफ था, मरियम नवाज ने लंदन जायदाद बनाने और छुपाने में अपने वालिद की इआनत की। अदालत ने सवाल उठाया कि जायदाद 1993 में खरीदी गई, 2006 की ट्रस्ट डीड से इआनत कैसे हुई? आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। बेंच के सवालात पर नैब वकील को एतराफ करना पड़ा कि मरियम नवाज का लंदन फ्लैट्स खरीदने में किरदार नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, नैब का केस नवाज शरीफ के खिलाफ आमदन से जायद असासों का है। जब उनका ताल्लुक लंदन जायदाद से साबित होगा फिर शरीक मुल्ज़मान पर बात आएगी। अदालत ने पूछा, क्या नवाज शरीफ ने कहीं भी ये तस्लीम किया कि लंदन जायदाद उनकी है? नैब वकील ने जवाब दिया, नवाज शरीफ लंदन जाकर इसी घर में रहा करते थे। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, पाकिस्तान में आधे लोग दूसरों के घरों में रह रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालती सवालात का जवाब देने के लिए मोहलत मांगी तो समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बुज़दार दौर में जनूबी पंजाब की किस्मत तो न बदली, अलबत्ता उस्मान बुज़दार के अपने असासों में करोड़ों की मालियत का इजाफा जरूर हो गया। नईम हनीफ की रिपोर्ट। दौसा शरीफ में बुज़दार सरकार के दौरान साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खुद पर नवाजिशात के इंकशाफात जारी। उस्मान बुज़दार के जंगल को बाग बनाए जाने की रिपोर्ट के बाद जायदाद में इजाफे का मामला भी सामने आ गया। करोड़ों रुपए की 320 मरले जमीन अपनी रिहाइश गाह में शामिल कर ली। उस्मान बुज़दार ने इलेक्शन कमीशन में 14 कनाल अराजी जाहिर की थी। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार की रिहाइश गाह के करीब 16 कनाल जमीन जिसकी मालियत 8 करोड़ रुपए से जायद है, उसे कोठी में शामिल कर लिया गया। जमीन का लेवल बढ़ाने के लिए मुबैना तौर पर दौसा को बचाने के लिए बनाए गए स्परबंद के ठेकेदार की खिदमत ली गयी। स्परबंद के ठेकेदार ने मिट्टी डालकर 16 कनाल जमीन का लेवल बढ़ाया। साबिक वजीर आला के जंगल को बाग में तब्दील करने की रिपोर्ट भी चंद रोज पहले सामने आई थी, जब 4 सरकारी महकमों ने उस्मान बुज़दार को करोड़ों रुपए का जाती फायदा पहुंचाया। नईम हनीफ, सामा, लाहौर। एंजेलिना जोली एक मरतबा फिर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान पहुंच गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। मुश्किल में घिरे मुतासरीन की मदद और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान में शदीद बारिशों के बाइस सैलाब, तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर। दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा एंजेलिना जोली को फिर पाकिस्तान खींच लाया।
हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा कराची एयरपोर्ट से अंदरूनी सिंध के लिए रवाना हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी सिंध के सैलाब मुतासरीन से मुलाकातें करेंगी। इससे कबल एंजेलिना जूली 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। 2010 में सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा मदद को पहुंची। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। एंजेलिना जूली 2005 में भी ज़लज़ला ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मदद में पेश रहीं। सरहद पार अफगानिस्तान से एक बार फिर दहशतगर्दों ने शिमाली वजीरिस्तान में हमला किया। फायरिंग के तबादले में 34 साला सिपाही नजर मोहम्मद शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के भारी जानी नुकसान की इत्तलात है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ का दौरा किया और लापता कारकुनान के अहल खाना से मुलाकात करके उनकी बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। साद साबरी की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कराची के MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने MQM की क़यादत के साथ मुत्तहिदा के लापता अफराद के गमज़दा अहल खाना से भी मुलाकात की। इस मौके पर गुमशुदा कारकुनों के अहल खाना ने वज़ीर दाखिला से अपने प्यारों की वापसी का मुतालबा किया। मेरे शोहर कितनी तबीयत खराब है, अपने बेटे को सिर्फ याद करते हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी होगी। राना सनाउल्लाह ने मुलाकात के अख्ताम पर कहा कि वो लापता अफराद की बाजियाबी की कोशिश करेंगे। ये गुमशुदगी या लापता करने की बात जो बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पे कराची के लोग फेस कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ और वज़ीर आज़म की तरफ से उन फैमिलीज़ को यकीन दिलाया है कि हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इतनी सजा दी जाए जितना जुर्म किया है। हम अभी भी कह रहे हैं जिन्होंने लापता किया है, हम उनको सजा दिलवाना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्यारे अपने घरों तक वापस हो। उसमें कोई भी कानून साजी करनी है, हम तैयार हैं आपके साथ। MQM पाकिस्तान के 3 लापता कारकुनों की लाशें 14 सितंबर को अंदरूनी सिंध से मिली थीं, जिस पर MQM के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह MQM की क़यादत और लापता अफराद के अहल खाना से मिलने आए थे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ साद साबरी, समा, कराची। CCPO लाहौर का तबादला क्यों किया गया, समग्र नुमाइंदे अब्बास नकवी से जान लेते हैं। अब्बास, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जो राय है उनका ये कहना है कि CCPO लाहौर जो है गुलाम महमूद डोगर, उनका तबादला साबिक जज और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा वकील के घर पर गैर कानूनी छापा मारने पर किया गया है और वफाकी हुकूमत इसकी इंक्वायरी कर रही है और इस पे अमल न करने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से इसीलिए जो है आज वफाकी हुकूमत ने जो है CCPO लाहौर की खिदमत जो है वापस ली है और इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी जारी है और वफाकी हुकूमत इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल का भी जायजा ले रही है। बहुत शुक्रिया आपका। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।